Okay. Hare Krishna. We'll start the session by Mangala Charna prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, all the assembled devotees. We may start from Bhagavad Gita, chapter 2, verse number 21 onwards. So far, we have discussed the first chapter, in which there were four questions of Arjuna. Mainly, it is four themes of one's life, and when we, you know, when we even introspect in our life in depth, we understand that we are also going through the same problems. जैसे कि for example, Arjuna had compassion, but that compassion was at a wrong place. Why? Because it is taking him away from his duties, his dharma. Because he was a born Kshatriya, so he was supposed to fight religious fights, right? So even we see that in spiritual practices, the very first thing that we are taught is non-violence. But that doesn't mean that non-violence should be made an excuse when violence is a necessity, right? ये context में I want to narrate one story of Srila Prabhupada. Once
Srila Prabhupada, he went to a Buddhist, he was having a meeting with a Buddhist monk. And at that point, uh, the Buddhists, they have this, that they have an atheistic religion actually. They don't believe in God. But they say that, uh, you know, ahimsa is paro dharma, the greatest dharma. करके. But when they were saying this thing that ahimsa is paro dharma, then Prabhupada asked that I can see that there are many lady disciples also of yours. बहुत सारे माताजी लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, है ना? तो आप बोल रहे हो अहिंसा परो धर्म, लेकिन आप सोचो कि आप एक दिन बैठकर लेक्चर ले रहे हो और यहाँ पर कुछ गूंज आ जाए, कुछ गुंडे आ जाए और वो लोग छेड़ने लगे ये माताजी लोग को, then what will you do? Because if you non-violently approach them and say that नहीं नहीं आप जाइए ये गलत है, they are not going to listen, right? तो वो टाइम पे आप उनको कैसे समझाओगे? So he said that I'll be still non-violent because ahimsa is parodharma. You see, it is not a very good definition of a perfect dharma. Ahimsa is part of dharma, but it is not completely dharma. Why? Because when adharma rises, irreligiosity and unrighteousness, it rises in the society. It is the duty of the ruling class, even by exhibition of what do you say, violence, they have to eradicate those irreligiosities. That is the very reason why even Krishna dissents. Krishna says this in the Bhagavad Gita. Yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. You see, this is a famous style in which the verse is recited when B.R. Chopra's Mahabharat gets started. If anyone of you has seen it, you will relate. But the point is, Krishna says, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब जब धर्म का ग्लानि होता है ना, और अधर्म बढ़ जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. I personally come करके. Why does he personally come? He gives some reasons. परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं, who are good people, है ना, धार्मिक people, परित्राणाय साधूनाम, to what do you say, to protect them, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृता, विनाश करने के लिए किसका? दुष्कृत लोगों का, जो लोग बुरे लोग हैं वो लोग का. That involves non-violence, right? But it is not wrong. Why? Because it is to protect the good and destroy the evil. धर्म संस्थापनार्थाय, टू री एस्टैब्लिश धर्म, धर्म को वापस री एस्टैब्लिश करने के लिए. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. दिस इज हैपनिंग युगा आफ्टर युगा, millennial after millennial. So this fight which Arjuna was supposed to fight was actually sanctioned by Krishna. Krishna said that this is a religious fight. And who is a better authority than Krishna himself? So Arjuna was trying to escape his duties as a Kshatriya, by using his compassion. So his compassion for a wrong cause. Similarly, there are many conceptions which we also have, which is for a wrong cause, right? Similarly, the second problem was that Arjuna felt that there is no enjoyment. Even if I win over all these people and kill people like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship, there is no use. There is no enjoyment.
थर्ड थिंग, ही फेल्ट दैट इट विल बी अ सिन, ये पाप हो जाएगा अगर मैं ये चीज़ करूँगा। सिमिलरली हमको भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट रहता है कि एक्चुअली पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। हम लोगों को तो इवन स्टार्टिंग में, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, आई नेवर न्यू दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड स्वर्गा। आई थॉट दैट बोथ ऑफ देम आर सेम। इट इज आफ्टर रीडिंग भगवत गीता आई गॉट क्लैरिटी, अच्छा ओके ये दो अलग अलग चीज़ें होती है, स्वर्ग अलग होता है और ये। Similarly, we don't have idea about what is material and what is spiritual, ऐसे सब। So all these issues, and fourth one, the family tradition being broke, ये सारे issues को लेकर Arjuna becomes indecisive. He cannot take a decision, and he approaches Krishna and says that Krishna, now I am a completely surrendered and devoted soul, और मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है। एंड उसके बाद में कृष्णा स्टार्ट्स स्पीकिंग। So when Krishna starts speaking, the first question that he addresses is that of compassion. That Arjuna, you are having compassion for the wrong thing and you are lamenting for wrong cause. और भगवान वो कैसे प्रूव करते हैं? भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो बॉडी है, दिस इज टेम्पररी एंड द सोल इज एटर्नल। और भगवान क्या कर रहे थे? वो स्पिरिट सोल के बारे में, वो आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे थे। इसलिए ये जो सेक्शन है इसको आत्मज्ञान भी बोल सकते हैं, आत्मज्ञान है, बराबर। तो इसके अंदर बहुत सारे कोटेशन आते हैं, बहुत सारे श्लोक होते हैं। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे तो उसके साथ बहुत मिलजुल खाएंगे, क्योंकि एट लास्ट दिस इज द समरी, दिस इज द एसेंस, कृष्णा हैज स्पोकन द एसेंस। So far, so actually up till 30th श्लोका कृष्णा गिव्स आत्मज्ञान। 30th श्लोक जो है तभी तक, 30वें श्लोक तक भगवान आत्मा के ही बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद में 31 से लेके 37 तक अर्जुना का जो सेकंड क्वेश्चन है कि मैं अगर ये लोग को मारकर ये किंगडम जीतूंगा भी तो भी देयर इज नो हैप्पीनेस, वो चीज को भगवान एड्रेस करते हैं 31 से लेकर 37। काइंडली नोट दिस सेक्शन इज नोन एज सकाम कर्म। सकाम कर्म, या फिर वैदिक पर्सपेक्टिव से बात करूं तो वी कैन कॉल इट कर्म कांड। So when Krishna is speaking, Krishna is not just speaking from one line. No. Krishna is speaking for everyone, for even people who are following Vedas. But even in that, Krishna has made these degrees कि मतलब which is superior, which is inferior, ऐसा ऐसा. So sakama karma is actually inferior. Like desires के साथ काम करना, ambitious होके काम करना is actually inferior. That we will understand when we learn the next section, which starts from 38th verse. 38 से लेके 53 तक, if I'm not wrong, it is निष्काम कर्म, like acting for a matter of duty। मतलब वो फेमस वाला चीज हम लोग सुनते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, वो वाला सेक्शन। ये जो सेकेंड चैप्टर है गीता का, दिस इज एक्चुअली अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ द एंटायर गीता। तो इसके अंदर आपको हर एक वैदिक सेक्शन, वैदिक स्क्रिप्चर के अंदर का एसेंस आपको मिलता रहेगा। जैसे पहला वाला जो सेक्शन है जिसके अंदर आत्मज्ञान दिया गया है, ये कोई भी वैदिक स्क्रिप्चर के लिए सबसे बेसिक चीज है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्शन में जी रहे हैं ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। Like in the previous class only we heard that Krishna saying, Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमुह्यति। ये जो देह है, ये जो आपका बॉडी है, ये जिस तरीके से बॉयहुड से लाइक कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में, दैट इज अडल्टहुड में जाता है, और एडल्टहुड में से ये वृद्ध अवस्था में जाता है, जरा के अवस्था में जाता है। ठीक उसी तरह जब ये बॉडी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, डेड हो जाता है, द स्पिरिट सोल इज कैरिड टू अनदर बॉडी, इट इज कैरिड टू अ वूम्ब ऑफ अनदर मदर, है ना। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, बराबर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विच मीन्स दैट दिस बॉडी इज गोइंग टू एंड। तो ये बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है, दिस इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, because it is permanent, it is not permanent, it is going to change। What is not going to change is your eternal identity as a soul, and that is the very reason why the first thing Krishna teaches Arjuna is about the eternal nature of the soul,
and the non-permanent nature of the body. So we'll start from verse number 21 now. I'll present. सबसे पहले तो okay. This is chapter 2, verse number 21. वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्. O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? Okay, this is a very straightforward verse, but still we will see कि इधर ना सोल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कृष्णा ने बात किया हुआ है ये वर्स में. ठीक है, सबसे पहला होता है वेद अविनाशिनम. ये जो अविनाशिनम है, अब विनाश मतलब क्या होता है कि खत्म हो जाना, है ना. अविनाशी मतलब क्या, कौन होता है, जो कभी खत्म नहीं होगा. सो कृष्णा इज सेइंग दैट दिस सोल इज व्हाट अविनाशिनम. दिस कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना. ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ये खत्म नहीं कर सकते, कोई मार नहीं सकता है सोल को. क्यों? क्योंकि हम लोग ने पिछली बार भी डिस्कस किया, सोल इज वेरी सटल, है ना. ये सोल जो है वो बहुत छोटा है, इट्स डिमेंशंस आर आल्सो वेरी लिमिटेड, इट इज वेरी सटल. Nobody can kill the soul. And the second thing is soul is eternally existent with Krishna, because we are part and parcel of Krishna, we have came from Krishna, so we cannot be destroyed. Just like Krishna is eternal, we are also eternal. But the thing is, even though we are eternal, we are part and parcel, we are not the complete whole. हम लोग पूर्ण नहीं है, हम लोग भगवान के बिना अधूरे हैं. और ये हम लोग ये लाइफ में ही रियलाइज कर सकते हैं जब भी हम लोग थोड़ा बहुत हमारे नेचर मतलब सोल के बारे में और भगवान के बारे में जानेंगे और थोड़ा साधना करेंगे. वी विल रियलाइज एंड कम टू दिस पॉइंट, ओ यस, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट कृष्णा करके. सो वी आर अविनाशिनम, द सोल इज अविनाशी. नित्यम, नित्यम मीन्स इटर्नल. इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल, एंड नॉट ओनली इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल. दूसरा एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिस्ट्रक्टेबल है तो ठीक है, लेकिन अपने आप मर जाता होगा तो, जैसे ये बॉडी चला जाता है ना, कोई डिस्ट्रक्ट नहीं करता है तो भी अपने आप हो जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है. तो नहीं, नित्यम, इट इज फॉर एवर, इट इज बियॉन्ड दिस कॉन्सेप्शन ऑफ मटेरियल टाइम. ये बॉडी और सटल बॉडी जो है ये एक्चुअली टाइम के परव्यू के अंदर है जिसमें हम लोग मरते हैं. बट द सोल विच इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस थिंग्स, विच इज ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, इज एक्चुअली नित्यम. Just like Krishna. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam. Just like Krishna is Nitya, we are also Nitya. But we are eternally part and parcel of Krishna who are supposed to serve Krishna. Ya Enam Ajam Avyayam. Now Ajam is a very important, it's a very nice word. Ajam means, Ja matlab janam lena hota है. Jam, जन्म का रूट वर्ड ज होता है. अजम मतलब दैट विच इज अनबॉर्न. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जो लोटस होता है उसको नीरज बोलते हैं, नीरज. तो ज इज जन्म, नीर मीन्स वाटर, समथिंग विच हैज टुक बर्थ इन वाटर इज नीरज, दैट इज लोटस. सिमिलरली अंबुज is also lotus. Ambu, the same project. So similarly, ajam means something which is not born. The soul is not born. जैसे ये कंफ्यूजन रहेगा ना कि हम लोग बर्थ लिए है, तो सोल हमारे साथ बर्थ नहीं लिए. सोल एक्चुअली ट्रांसमाइग्रेट करके ये बॉडी में आया है, सोल बर्थ नहीं लिया है. तो इसलिए अजम वर्ड यहाँ पे यूज किया गया. ये मटेरियल बर्थ नहीं होता है सोल का. सोल इज अजम, इट हैज नो बर्थ, इट इज अव्ययम, कोई मार नहीं सकता इसको, इट इज इम्यूटेबल. ओके, तो ऐसा सब जब नेचर है सोल का, तो ये सोल को ना तो कोई मार सकता है और ना ही ये सोल किसी को मार सकता है. फिर आप किस बात के लिए रो रहे हो, बात है ना.
a person who knows this. ठीक है? How can, how will the soul kill someone, or how can the soul be killed? He is in knowledge. So that is what Krishna is saying here. Okay. Yeah, and Prabhupada gives a beautiful analogy in this purport. If you see, ये जो so called violence is permitted वाला ये जो चीज आ रहा है, administration of justice, for administration of justice so called violence is permitted, this is what we discussed in the first part only in today's class. And here we can see that a surgical operation is not meant to kill the patient, but to cure him. Okay. Surgical operation, maybe it might seem that, actually the other person is suffering because somebody is taking a knife and cutting him and dissecting him, taking out his organs, keeping another. So it might seem that there is some kind of violence here, but why is it done? It is for the sake of curing him. Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at the instruction of Krishna is with full knowledge. So there is no possibility of sinful reaction. So it is in a way like that surgical operation only. Surgical operation may just like it is done for the sake of the patient, and that also looks like it is uh, a so-called violence, but it is not an act of violence. It is an act of compassion instead. Similarly, when you are fighting for dharma, you are actually protecting people from others. So when you are protecting, the very word kshatriya का मतलब ही वो होता है. क्षत मीन्स वायलेंस, या फिर जो गलत चीजें होता है ना, लोगों पर अत्याचार और लोगों को भय रहता है ना ये चीज का कि कोई और आकर उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, ये सारी चीजों को क्षत बोलते हैं. त्रिय मतलब त्रायते. त्रायते संस्कृत में त्रायते का मतलब होता है कि जो बचाता है, जो वो चीज से बचाता है या फिर उससे बाहर निकालता है. तो क्षत्रिय इज दैट पर्सन हु गिव्स प्रोटेक्शन टू पीपल, जो बचाता है लोगों को क्या चीज से? वायलेंस से और अधर्म से. तो क्षत्रिय का मतलब ही वो होता है. तो बिकॉज अर्जुना इज अ क्षत्रिय, इट इज फॉर मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ अर्जुना to actually protect all these people from Kshat, right? So when he is trying to run away, so Krishna is actually establishing dharma again, and through Arjuna he is doing it. Okay. Now in the 22nd verse we see that Krishna says, this is a very beautiful verse. Okay, जिसके अंदर हमारा जो कंडीशन है इसको बहुत प्रॉपरली कृष्ण ने एक्सप्लेन किया. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्नम् अन्यानि संयाति नवानि देहि. वासांसि जीर्णानि. Vasamsi. Vasa means clothes, just like this cloth which I am wearing. Vasamsi जीर्णानि, जब जीर्ण हो जाता है वस्त्र, जो आप वस्त्र पहने हो वो जब खराब हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, अब वो आप पहन नहीं सकते हो, ऐसा कंडीशन में होता है. तो क्या होता है? यथा विहाय, जिस तरीके से आप उसको त्याग देते हो, विहाय कर देते हो मतलब छोड़ देते हो, बोलते हो कि नहीं चाहिए, ऐसा. नवानि घृणाति नर अपराणी. और नर क्या करता है? नर मतलब वो व्यक्ति. नवानी, नव मतलब नया. नवानी घृणाति, नए वास है या फिर नए वस्त्र जो रहता है उसका ग्रहण करता है, वो ले लेता है, नए वस्त्र को एक्सेप्ट करता है. अपराणी, दूसरे जो नए वस्त्र रहेंगे उसको एक्सेप्ट करता है. बराबर. जिस तरीके से खराब हुए जीर्ण वस्त्र को एक व्यक्ति त्याग देता है और एक नए वस्त्र को यूज करने के लिए एक्सेप्ट करता है, ठीक उसी तरीके से तथा. तथा मीन्स एग्जैक्टली लाइक दैट. ऊपर आप देखोगे फर्स्ट वर्स के अंदर यथा वर्ड यूज हुआ है. यथा तथा है ना, जैसे वैसे. हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, जिस जैसे वैसे करके बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर यथा तथा यूज हो रहा है संस्कृत के अंदर. यथा तथा, जिस तरीके से पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र का ग्रहण करता है व्यक्ति, उसी तरह वही तरह शरीराणि विहाय, जो जीर्ण शरीर होता है हमारा,
जो शरीर अब यूजफुल नहीं है सोल के लिए, वो शरीर को छोड़कर, विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति, मतलब कोई और शरीर का, नए शरीर का ग्रहण करता है, जो आत्मा रहता है वो। ये श्लोक के अंदर भगवान वो बोल रहे, जिस तरीके से तुम एक बुरा, आपका जो गंदा वस्त्र है, मलिन वस्त्र है, जो जीर्ण वस्त्र है, वो चीज का त्याग कर कर एक नए वस्त्र का ग्रहण करते हो, ठीक उसी तरीके से जो देही होता है, यहाँ पर देही का मतलब होता है आत्मा, जो देही होता है, वो देही भी, जब ये देह, देखो दो चीजें होता है, एक देही होता है और एक देह होता है। शास्त्रों में देही का मतलब होता है वो जो देह के अंदर बैठा है, जिसका ये देह है। देही मतलब आत्मा, और देह जो होता है वो उसका मटेरियल बॉडी को देह बोलते हैं हम लोग। तो ठीक उसी तरह जो देही होता है, वो देह के जीर्ण हो जाने पर, खराब हो जाने पर, वो ये देह को त्याग कर नए देह को एक्सेप्ट करता है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोक। But in this connection, there are some things that I want to discuss with you. सबसे पहला चीज तो यह है कि एक नए देह को आप एक्सेप्ट कैसे करते हो। सबसे पहला क्वेश्चन वो है, क्या आप अपने मर्जी के हिसाब से करते हो क्या? द आंसर इज यस एंड नो बोथ। वाई इज इट नो, वो मैं पहले बोलूंगा। वाई इज इट नो? क्योंकि देर इज नो इंस्टेंस दैट वी रिमेंबर कि हमने हमारे माता पिता को चूज किया, हमने हमारे दोस्तों को चूज किया, हमने ये कंडीशन चूज किया पैदा होने का। नहीं तो एटलीस्ट हम लोग आकाश अंबानी बन के पैदा होने के बारे में सोचते थे ना ये दुनिया में। लेकिन हम लोग ने वो चीज नहीं किया। उसका मतलब हम लोग नहीं थे जो लोग ने चूज किया कि क्या कंडीशन में पैदा होना, बट इनडायरेक्टली हमने ही चूज किया वो चीज को। कैसे? कर्मों के थ्रू। भगवान ने ना इस जगत में सबको कर्म से बंधित रखा हुआ है। एवरीवन इज बाउंड बाय कर्मा, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा जी up till an ant or some microorganism, everyone and everything is actually bound by karma and karmic reactions. ऐसा बोलता है ना, जो चीज के लिए आप, मतलब वो बोलते हैं ना, जो जो कर्म करोगे वैसा वैसा फल आपको मिलता रहेगा। जो जो क्यों पता है क्या? ये कर्म जो रहता है, दिस एक्चुअली गिव्स इंडिकेशन टू नेचर। नेचर इज एक्चुअली व्हाट इट इज एक्चुअली, para prakriti, it is an external energy of कृष्णा, है ना, बहिरंग शक्ति बोलते हैं जिसको। ये जो शक्ति है, इसको माया देवी कहा जाता है, महामाया, है ना। ये महामाया जो है, शी ओनली कंट्रोल्स द नेचर, शी इज ओनली नेचर एंड एवरीथिंग। इसके वजह से हम लोग नेचर को एक गॉडेस जैसा मानते हैं, है ना। इट इज बिकॉज शी इज एन एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा। She is Maya Devi, and who is her husband? It is Lord Shiva. Lord Shiva is her husband. So ये जो माया देवी है, she is considered to be our mother, and whatever we ask for, we get it. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको बेटर कनेक्ट होगा। जैसे जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा मोटा हो जाता है या फिर ये करता है, वो क्या करता है? वो जिम जाता है। वो जिम क्यों जाता है? जिम जाता है इसलिए क्योंकि उसको पतला होने का है। सो व्हेन ही गोज टू जिम and he does workout, he eats the food which is necessary, उसके हिसाब से nature only grants him a body which is that of a bodybuilder or a lean person, है ना। now this idea might be strange for us, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हम लोग वर्कआउट करते हैं, हम पतले हो जाते हैं, इसमें नेचर क्या कर रहा है करके। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो हम लोग को समझेगा। हम लोग बचपन में कितने छोटे थे, उसमें से हम लोग ग्रो अप हुए। आज के टाइम पे एक तरीके से हम लोग देखेंगे ना, इट इज सेड दैट इवन द सेल्स इन आवर बॉडीज चेंज। हु इज डूइंग दिस चेंज? दिस इज एक्चुअली द एक्ट ऑफ नेचर। एक्चुअली नेचर कर रहा है, माया देवी कर रही है ये। तो जिस तरीके से आप प्रयत्न करोगे और जैसे जैसे आप इंडिकेशन दोगे, माया देवी वो हिसाब से आपको एक सूटेबल बॉडी सप्लाई करती रहेगी। द प्रॉब्लम विद अस इज वी थिंक दैट डेथ इज अ वन टाइम थिंग करके, but it is not like that. Every day with passing time we are actually moving towards death only, or in a way we are dying, and हम लोग वापस जन्म ले रहे थे, उसी तरीके से चीजें हो रही है। in every moment we are dying, every moment when we realize this,
then we understand that ki this spirituality is so important. This Krishna consciousness is actually very important. Why? Because at every moment I am dying, I'm not realizing. एक मोमेंट पे एक्चुअली देह छोड़ देगा. हम लोग क्या होता है कि एक मोमेंट ऐसा आएगा जब भी कंप्लीटली ये देह त्याग कर हम लोग दूसरे देह में जाएंगे. हम लोग सोचते हैं कि वो डेथ है, लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी. द रियलिटी इज दैट वी आर डाइंग एट एवरी मोमेंट, है ना. एंड अ न्यू बॉडी इज बीइंग ग्रांटेड आल्सो एट एवरी मोमेंट बाय माया देवी. So the same thing is happening here. Whatever indication we give, according to that, whatever karmas we do, according to that, Maya Devi sanctions the body. जैसे कि for example, 40 it is said that 45-50 years जब तक खत्म हो जाता है हमारा एक देह के अंदर, मतलब मनुष्य जन्म में, it is almost decided, almost क्या, it is decided only कि आपका अगला जन्म क्या होने वाला है. Why? Because your karmas till that point are going to be counted, and you are going to. आकाश प्रभु, आई थिंक दैट थोड़ा आवाज आ रहा है. इट वुड बी नाइस इफ यू कैन म्यूट थोड़ा सा. थैंक यू. यस. सो आई वाज टेलिंग कि आपका है ना अगला जो बॉडी रहता है वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है. जैसे कि एक व्यक्ति थी, वो प्रभुपाद के पास आई, वो माता जी, एंड शी आस्क्ड दैट प्रभुपाद, व्हाट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट लाइफ में मैं क्या बनने वाली हूँ. हम सबको ये डाउट आता है ना. तो प्रभुपाद आज के आपका सबसे फेवरेट चीज क्या है, क्या करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है. सो शी सेड दैट कि मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, मैं बहुत स्विमिंग करती हूँ. सो प्रभुपाद सेड दैट देन इन नेक्स्ट लाइफ यू विल बी अ फिश. तो एवरीवन गॉट bewildered, ऐसा कैसा है यार, ऐसा कैसे बोल दिया आपने. सो एट दैट पॉइंट ही एक्सप्लेन्स कि बिकॉज वेन एवर यू आर, आप तैर रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम, और आपको बहुत आसक्ति है वो चीज़ करने के लिए, आप बहुत अटैच्ड हो पानी के साथ, और आप पूरे दिन में मेजोरिटी ऑफ द टाइम तैर रहे हो, आप क्या इंडिकेशन दे रहे हो, मुझे ये पसंद है करना, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू. एंड कृष्णा इज वेरी काइंड. माया देवी आज्ञा पालन करती है कृष्णा का. कृष्णा इज वेरी काइंड, वॉट एवर यू वॉन्ट यू गेट. एट दैट पॉइंट यू विल बिकम अ फिश. फिर वापस वो 8.4 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ घूमना पड़ता है, उसके बाद में आप मनुष्य शरीर में आते. इसीलिए कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये कितना दुर्लभ है करके. दिस इज वेरी रेयरली गिवन. इफ यू सी अपार्ट फ्रॉम अस, किसका, कौन सा जीव ऐसा है जिसका इतना डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है. कोई नहीं है. इतना डेवलप्ड कॉन्शियसनेस कि आप ये चीज को समझ पाओ कि आप सफर कर रहे हैं, ये किसी के साथ नहीं हो रहा है. सब लोग ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, ये चार ही चीजों में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, सब लोग यही चीज कर रहे हैं. कुत्ता बिल्ली भी ये कर रहा है. फिर आप देखोगे एलिफेंट्स आर डूइंग दिस. फॉर मैटर ऑफ फैक्ट एवरी ऑर्गेनिज्म इज डूइंग दिस, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. They are also having food, they are taking rest, they are reproducing, and they are defending themselves from problems which is external to them, whatever it is. और इट इज वेरी सैड कि आज के टाइम पे मनुष्य भी यही कर रहा है. ह्यूमंस आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. दे आर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, फंडामेंटली फोर थिंग्स ओनली. व्हाट इज द डिफरेंस? वी आर डूइंग इट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे. वो लोग सड़क पर रहकर करते हैं या जंगलों में रहकर करते हैं, हम लोग फ्लैट में 2 BHK में रहकर करते हैं या बंगलों में रहकर करते हैं. जैसा जैसा फैसिलिटी बनता है वैसा वैसा इंसान और मूड बनते जाता है. ये चीज नहीं समझ पाता है कि यह चार चीज में से एटर्नली बाहर निकलना एक्चुअली रियल ड्यूटी है करके हमारा. हम सब ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग मोड पे ही है. बस अच्छा खाना खाना है, अच्छी पत्नी या पति होना चाहिए, अच्छे से सोना है, काम पर जाना है और डिफेंड करते रहना है अपने आप को. दिस इज व्हाट इट इज, एंड दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना. What happens is, what makes it even more worse is when you get a body in which you can think beyond this. You can think that who am I, why am I suffering, why I have to accept birth, why I have to accept death, why I have to accept old age, why I have to accept disease.
ऐसा एक बॉडी आपको मिला है, व्हाट इज द सोल्यूशन? कुछ तो सोल्यूशन होगा इसका, इससे बाहर निकलने का। जो भी कर रहा हो सिर्फ एंटेंगल होते जा रहे हो यार, और क्योंकि आप एक कर्म करते हो, वो कर्म का आपको कर्म का फल मिलता है। वो कर्म का फल जब मिलता है उसके साथ में आप दूसरा कर्म कर बैठते हो, उसका वापस फल मिलता है, फल के साथ में दूसरा कर्म। ऐसे करते 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 आप एक बहुत बड़े जंजाल में फंस जाते हो, कर्मों के बंधन में। इसलिए उसको एक बंधन कहा गया, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इवन इन भगवद गीता वी विल सी that Krishna, towards the 19th shloka, Krishna says that some people say that this soul is amazing. Some people say that this soul is so stunning to talk about the soul. Some people hear about the soul and they are amazed. And some people, even after hearing from authorities, they don't understand. Why? Because they are engrossed in material sense gratification. And it is dangerous. आप जितना 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 ग्रेटिफाई करोगे अपने आप को, उतना 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 कर्म के अंदर आप बंधित हो जाओगे। जितना जितना आप बंधित हो जाओगे, उतना उतना आपका आगे लाइफ बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, उसके बाद में हम लोग दूसरे फॉर्म ऑफ लाइफ में जाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के बाहर देयर इज नो अपॉर्चुनिटी आल्सो टू थिंक। बाकी के जो स्पीशीज है लाइफ का, जो इंफीरियर स्पीशीज है, जो बेचारे एनिमल्स और ट्रीज है, वो लोग सोच भी नहीं सकते ये चीज के बारे में। आपको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला और आप ठीक उसी तरह आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, और सोफिस्टिकेशन में और माया के अंदर कर रहे हैं। दिस इज सो डेंजरस। वी हैव टू थिंक ऑफ इट एंड हैव टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन टू गेट आउट ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ वी अप्रोच गीता, कि क्या करना है। इन दिस कनेक्शन, श्रीपाद शंकराचार्य in his Bhaja Govindam, he writes a very beautiful verse showing the danger ये चीज के बारे में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारु पाहि मुरारे। पुनरपि जननम, once again taking birth, punarapi maranam, and dying once again, punarapi janani jathare shayana, and once again uh, like getting into the womb of a mother. It is so dangerous. Iha samsare, this samsara, this cycle of repeated birth and death, bahudustare, it is so dangerous. Kripaya pare pahi murare, murari Krishna, please take me out of this, Sripad Shankaracharya is saying. You see, it is very dangerous. And as per our karma, we get a new body. That is how it works. जैसे especially for people who eat meat, I say this thing कि when you eat meat, what happens is that आप एक्चुअली एक दूसरे जीव को मार कर खा रहे हो, है ना, खुद के भोग के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए आप एक दूसरे जीव को मार रहे हो और उसको खा रहे हो, एज सिंपल एज दैट, right? Which is not meant for you. Even biologically speaking, meat is not meant for us. You can take several reasons. We don't have same teeth like the carnivorous animals, which is an indication. The tongue is different. Even our what do you say, आपका जो intestine है, small intestine, it is actually very big. But when you take carnivorous animals, they have an intestine which is really small. Why? Because meat of another animal is not very good when it is inside your system. So that's why the body flushes it out very fast in their case, है ना? So we don't have that hunting propensities and things like that. So we are never meant for meat. We can avoid meat. Why to kill animals? है ना? हम लोग वो चीज कर सकते हैं for the sake of our taste. So ये जो चीज है, ये एक्चुअली हमारे अंदर दया को खत्म कर देता है, पहला चीज। और दया के बिना आप स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं रह सकते। दया जब तक नहीं है आपके अंदर, दया इज फंडामेंटल, तो ही आप स्पिरिचुअल लाइफ में रह सकते हो। करुणा होना चाहिए आपके अंदर थोड़ा तो। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ईट मीट,
आप क्या कर रहे हो पता है क्या? आपने एक जीव को मारा, उसने उसका लाइफ पूरा नहीं किया, आपने उसको मार दिया। नाउ प्रकृति के हिसाब से this cycle will be completed when that jiva is going to kill and eat you back, right? नहीं तो फिर जस्टिस कैसे होगा? कल उठ के आपको या फिर आपके घर पे से, भगवान ना करे किसी के साथ ये हो, लेकिन समझो कि किसी के साथ हो गया, किसी के घर पे आके किसी ने वायलेंस किया, किसी ने किसी को मारा पीटा कुछ किया, वो साइकिल कब खत्म होगा? एटलीस्ट आपके एंड से आप सोचो, आप कब सोचोगे कि आपको जस्टिस मिला? जब वो सेम चीज उसके साथ हुआ, राइट? तो आप एक इनोसेंट एनिमल को मारकर खा रहे हो, तो वो चीज जो है, वो साइकिल कब खत्म होगा? उसको कब जस्टिस मिलेगा? जब ये आपको वो मारेगा और खाएगा, है ना? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु ईट मीट, आई एम टॉकिंग इन जनरल, they eat, for example, they eat a goat. Okay, now that goat is going to die. Already his next life is decided. So he might take some time to come to the human form of life. Similarly, आपका भी अगला लाइफ तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपको भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली कर्मा दैट यू आर डूइंग, आपको भी सर्टेन टाइम लगेगा गोट बनने के लिए। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों बिठा के आपको इंसान, मतलब आपको गोट बनना है, उसको इंसान बनना है, वैसा जन्म कब आएगा? तब जाकर आपका कर्म कर्म का फल मिलेगा आपको, और वो आप मुक्त होगे वो कर्म के अंदर से। द सेम थिंग इफ यू सी पीपल ईटिंग हाउ मेनी एनिमल्स, कितने सारे जानवर तो ऐसे ही हो गए उनके, है ना? इट इज इवन सेड दैट इट इज सो डेंजरस कि एक एक रोम जो होता है, एक एक रोम एनिमल का, वन वन हेयर, आपको उतना जन्म लेना पड़ता है करके। इट इज सेड दैट बिकॉज नेचर्स लॉ इज वेरी वेरी हार्श, वेरी हार्श। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब मिला के देता है जब देता है तो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को दान देते हो 100 रुपीज, कि दान दान भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भगवद गीता में। सो अगर आप 100 रुपीज दान देते हो, सो इट इज नेचर्स लॉ दैट यू शुड गेट 4 times बैक फ्रॉम दैट पर्सन। ही इज नॉट गोइंग टू repay in this life, he is going to repay in some other life. So you should also take some other life. We see that even good deeds, punya is also actually binding us only in this. लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करो बस, और कोई दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म भी आपको बंधित ही रखते हैं इसके अंदर। इसलिए कृष्णा इज गोइंग टू स्पीक इन दिस चैप्टर ओनली, टुमारो वी विल डिस्कस देयर आर 3 types ऑफ कर्मास: akarma, vikarma, sukarma, three types of karmas. We are going to discuss it. We will discuss there in full length. I was just trying to tell you that this is through karma that the nature bounds us in all these things. Okay, next shloka we will take. नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. So here Prabhupada actually says, this is a very plain verse, but Prabhupada here gives some analogy. He says that, there were different forms of weapons at that point of time. Some were like water weapons, and some were fire weapons, and weapons using air and different potencies and natures. ऐसा सो मटेरियल एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए वेपन्स का। तो हम लोग आज के तारीख पे सिर्फ फायर वेपन्स को यूज़ करते हैं। इवन न्यूक्लियर वेपन इज सेट टू बी सम फॉर्म ऑफ फायर वेपन ओनली। तो ऐसे हर एक एलिमेंट का वेपन होता है। सो फ्रॉम एनी वेपन यू कैन नॉट किल द सोल। दैट इज व्हाट द आइडिया, दैट इज व्हाट कृष्णा इज स्पीकिंग हियर। अच्छेद्योऽयं मदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। This individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. You see, Krishna is speaking about this thing, Nitya, eternally the same sabna. Sanatana word is used. Sanatana means eternal. सनातन धर्म में आते हैं ना हम लोग। सनातन धर्म मीन्स इट इज एटर्नल धर्म फॉर एवरीवन, है ना? नित्य, अगेन नित्य वर्ड भी यूज किया है यहाँ पे इन दिस वर्ड।
अगेन एंड अगेन कृष्णा इज एम्फसाइजिंग ऑन दिस फैक्ट. कोई भी ऐसे ही बार बार एक चीज नहीं बोलता ना. ही इज एम्फसाइजिंग दिस इज नित्य, दिस इज नित्य, एंड द बॉडी इज टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी. ही इज सेइंग दैट थिंग, ही इज रिपीटिंग. देयर ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सर्वगतः स्थाणुर, है ना, सर्वगतः स्थाणुर. So it is said that the soul is all pervading and unchangeable. ठीक है, all pervading. यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताते हैं. कृष्णा इज सेइंग दैट इन everywhere you can find a soul. In everything we can see water, ether, air, fire. In everything soul is there. There are microorganisms which live in fire also. Similarly, the sun planet is also inhabited. Their body is different, we cannot see them. It is foolish to think that this is the only way in which life can exist. No, life exists in other realms also. It is only that they are more subtler, that we cannot see them. They are made of different composition of different elements. जैसे कि हमारा जो बॉडी है, इसके अंदर भी पांचों तत्व आते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो अर्थ वाला एलिमेंट है, दैट इज प्रोमिनेंट. Similarly, there can be bodies which have fire element which is prominent, which can live in fire, है ना. वाटर के अंदर लिव करने वाले ऑर्गेनिजम्स है. सो इट इज सेड बाय कृष्णा दैट दिस सोल कैन बी फाउंड एवरीवेयर. हियर वी कैन मेक दिस पॉइंट दैट it is very not a very good idea to think that humans have soul and animals don't have, because there are some sect of religious beliefs जो ये बिलीव करता है कि सिर्फ ह्यूमंस है ना, उनके अंदर ही स्पिरिट सोल एग्जिस्ट करता है, बाकी सब में सोल नहीं. तो भोग लो जितना भोगना है, उनको मार के खाओ, कोई दिक्कत वाली बात. ऐसा नहीं है. It is very clearly mentioned here that the soul is seen everywhere. It is there in all the living entities. That is mentioned here. So the Krishna is only saying that, you see the last paragraph of the purport. The word Sarvagata, all pervading, is significant because there is no doubt that living entities are all over God's creation. They live on the land, in the water, in the air, within the earth, and even within fire. ठीक है, ये चीज के बारे में प्रभुपाद स्पीक्स हियर. वाज अ वेरी गुड वर्स. So Krishna is re-establishing all these facts again and again and again. Avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchyate tasmadevam viditvainam nanushochitum arhasi. So the soul is avyaktoyam. अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं है. व्यक्त न होना मतलब दिखता नहीं है, इनविजिबल. अव्यक्तोयम अचिंत्योयम. अचिंत्य मीन्स इट इज इनकंसीवेबल बाय द माइंड. हम लोग कंसीव नहीं कर सकते सोल, ग्रॉस सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते. अचिंत्योयम, इनकंसीवेबल. अविकार्योयम उच्यते. विकार्य जो वर्ड होता है ना, इट मीन्स चेंज. विकार्य, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस को भी विकार्य बोल सकते हैं. अविकार्य मतलब देयर इज नो चेंज इन द सोल. द सोल इज एटर्नल एंड अनचेंजेबल. ठीक है, तो ये सब जानने के बाद में, नोइंग दिस, विदित्वैनम नानु शोचितुम अर्हसि. आपको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है. यू शुड नॉट लैमेंट unnecessarily. That is what Krishna is saying here. Okay. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि. If however you think that the soul for the symptom of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty Am. See, Krishna is now making a statement which is actually, what he is doing. हम लोग ऐसे कभी कभार करते हैं ना, डेविल्स एडवोकेट खेलते हैं हम लोग कभी कभार. चल एक बार के लिए सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता. तो कृष्णा इज ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग. चलो ठीक है, इधर तक मैंने बोला. अगर तुम इवन ऐसा भी सोचते हो ना अर्जुन, कि सोल जो रहता है ये बॉडी के साथ ही जन्म लेता है और ये बॉडी के साथ ही मर जाता है, तो भी तुमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर लैमेंटिंग. भाई, बिकॉज वो खत्म हो जाएगा ना. जो चीज खत्म होगा उसको लेके शोक करके क्या मतलब है. सो इन एनी केस, इन बोथ द केसेस, व्हेन यू आर इन प्योर नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, देयर आल्सो यू नीड नॉट लैमेंट. And even if you don't have proper knowledge and you think that it is going to end someday, then also there is no need to lament, because people die, and that is a very normal phenomenon, right? So from this verse, if you see, uh,
from this verse, if you see now, there are different doctrines which it seems that they existed at that point of time also. One is known as लोकायतस. लोकायतस वो लोग थे जो लोग ऐसा क्लेम करते थे कि ये बॉडी सोल अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी और सोल एक ही है। तो उसका मतलब ये है कि भाई जो भी करना है तुम कर लो, बॉडी और सोल तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पाप करो पुण्य करो खत्म हो जाएगा एक दिन, यू ओनली लिव वंस मैन। ये योलो वाले लोग है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। यू ओनली लिव वंस बहुत पहले से ही था, ये सब वो यू ओनली लिव वंस वाले लोग के लिए कि सोल और बॉडी एक ही है, अरे कुछ नहीं, मर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म ये नहीं होता। तो ये लोग वो जो लोग हैं ये योलो वाले लोग हैं। और दूसरे लोग हैं जिसको दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं। कुछ लोग थे जो लोग दृष्टि सृष्टिवाद करते थे, जो लोग ये बोलते थे कि लिविंग एंटिटीज और सोल, ये दो लिविंग एंटिटीज में दो पार्ट है, बॉडी और सोल अलग अलग है, बट ये सोल भी है ना, सोल भी बॉडी के साथ खत्म तो होता ही है, अलग है पर खत्म होता है। So it is nothing but the same thing, but in a different presentation style. They say that this consciousness, soul is different, but soul also comes to an end. They don't believe in पुनर्जन्म. So basically अभी भी बहुत सारे लोगों को ये आइडिया है कि पुनर्जन्म करके कुछ नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So Krishna is addressing these people here, right? We'll go to next verse. This is a very important verse again. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है वो मरता भी है, वो है जातस्य। जातस्य मीन्स वन हु हैज टेकन बर्थ, जात अस्य, जात मतलब हु हैज टेकन बर्थ, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, एंड ध्रुव मीन्स इट इज अ फैक्ट। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, it is a fact that one who is jatasya is going to have mrityu. And dhruvam, and it is also a fact that janma mritasya cha, those who have took janma are going to die, and those who are dying, those who have died mritasya are going to take janma also. उनका जन्म भी होने वाला है, जो लोग मृत है, जो लोग मर चुके हैं। जो लोग जन्म लिए हैं वो लोग मरने भी वाले हैं, जो लोग मर चुके हैं वो लोग जन्म भी लेने वाले हैं। ये चीज, दिस इज अ फैक्ट, ये चीज बता रहे हैं यहाँ पे। तस्माद अपरिहार्य थे, तो देयर फॉर तस्माद अपरिहार्य, परिहार, इसका कोई परिहार नहीं है, अपरिहार्य। परिहार मतलब क्या है? सोल्यूशन, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते आप इसको। ये जन्म लेकर मरना और मरने के बाद में वापस जन्म लेना, ये चीज अनअवॉइडेबल है, परिहार नहीं है उसका कोई, अपरिहार्य अर्थ है। न त्वं शोचितुम अर्हसि, देन यू नीड नॉट लमेंट वो चीज के ऊपर, क्योंकि जो जन्म लिया है वो तो मरने ही वाला है, और जो मरा है वो वापस जन्म लेगा ही। न त्वं शोचितुम अर्हसि, तो ये चारा चीज सोचकर आपको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है अर्जुन। दिस इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमिनन, ऐसा बोलते हैं। इट इज इनएविटेबल बर्थ डेथ साइकिल, एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ये जो रियल प्रॉब्लम है लाइफ का, इसी से तो हम लोग को बचने का, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्स, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। It is said that the soul, the living beings are avyakta adini. In the beginning we are avyakta, we are not seen, है ना, भूतानी। व्यक्त मध्यानि, मध्य मतलब क्या होता है? मिडल। व्यक्त मध्यानि, एंड इन द मिडल वी आर सीन, भारत अर्जुना। Avyakta nidhananyeva, and when we end, we are dead, we are not seen again. Tatra ka paridevana. So Krishna is not saying that we don't exist in the beginning and we don't exist in the end, in middle we are existing. Nahi, the word used is vyakta and avyakta. We are not seen, we are not manifested in the beginning, but we are manifested in the middle, and we are unmanifest again or invisible again in the end, है ना। विच मीन्स वी वर एग्जिस्टिंग तभी भी और अभी भी। इसको भी हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक सांख्य फिलोसफी के हिसाब से, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, इवन द थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस मटेरियल बॉडी, दिस इज मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स, बराबर। अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर, इससे हम लोग बने हुए। ये सारा एलिमेंट्स जो है ये बॉडी के अंदर, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था,
बराबर। लेकिन मी एज अ पर्सन 20 मार्च 1998 से पहले मेरे को कोई नहीं देख सकता था। 20 मार्च 1998 से लेकर जब भी तक मैं जीवित रहूंगा ये शरीर के अंदर, तब तक मुझे लोग देख सकते हैं, और उसके बाद में वापस मैं नहीं दिखूंगा। लेकिन फ्रॉम इवन अ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल दीज एलिमेंट्स in my body are going to be here only. Just that I am invisible in the beginning and end, but I am there in the middle, है ना? दिस इज द सेम थियरी जो हम लोग पढ़ते हैं ना 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में, कुछ तो स्कूल के अंदर साइंस में हम लोग सीखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके। एनर्जी इज neither created nor destroyed, it is just converted from one form to another wala. So energy is existing always. Similarly we are also existing always. It is just that we were invisible before. In the middle stage we are visible, and in the end we become invisible again. हाँ. Actually, one mistake I made is that in the 26th verse I mentioned the name Drishti Srishtivada. Actually Drishti Srishtivada ये वाला इसमें आता है. The second one was Vaibhashikas. Actually Vaibhasikas. तो Vaibhasikas were those people who believed that there is soul और body में difference है, but difference होने के बाद में भी सोल क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है करके, ऐसा मैंने तो बोला था। आई एम सॉरी। दृष्टि सृष्टिवाद एक्चुअली यहाँ पर आता है। दृष्टि सृष्टिवाद यह होता है कि जो लिविंग एंटिटीज है वो लोग मिडिल में विजिबल है, और लेकिन ये जो विजिबिलिटी है ना, ये भी एक्चुअली एक इल्यूजन है करके ये दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं। एंड इट इज ट्रू ऑल्सो, इट इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। प्रभुपाद इन द परपोर्ट टू दिस वर्सेस ही सेज दिस, it is actually when we are sleeping we dream, right? हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि हम लोग एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, तो चैरिट में बैठे हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं सपने के अंदर, और सपने में वो चीज रियल लगता है। बट जब भी हम लोग उठ जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि नहीं यार, ये कुछ रियल नहीं था, एक सपना था सर, ये सच नहीं है। Similarly, this life of ours is temporary. Something which is temporary, which is non-permanent, cannot be the ultimate reality. Ultimate reality or the real truth is something which is eternal, which is forever, which is सत्य, right? तो हम जो है हम लोग सत्य नहीं है, मतलब हमारा जो ये जो बॉडी है, दिस इज गोइंग टू गो अवे, दिस सटल बॉडी इज ऑल्सो गोइंग टू गो अवे। सो इट इज वेरी सर्टेन that we are not always we are not always existing with this body only, which means that whatever we do this with this body, this is temporary, and thus this is an illusion also. Someday, by Krishna's grace, when we come into our original consciousness, we realize that all these things nothing really mattered. जो कोई भी चीज के लिए मैं रो रहा था, जो कुछ भी मैं कर रहा था, it nothing really mattered. This was just like a dream. That is not a reality करके। राइट, दैट इज दृष्टि सृष्टिवाद। आई एम रियली सॉरी, मैंने वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिया। सो यस, हाँ, दिस वाज द वर्स दैट आई वाज स्पीकिंग बिफोर। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति, शृण्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ओके, आश्चर्य, आश्चर्य मतलब आपको तो पता ही है आश्चर्य मतलब क्या होता है। एस्टोनिशमेंट जो रहता है ना, अमेज होते हैं अपन, अमेजिंग। आश्चर्यवत, व्हाट, पश्यति कश्चिद एनम, एनम करके इधर सोल को रेफर कर रहे हैं। सोल का नाम नहीं है, बट एनम मीन्स ये करके बोलते हैं ना, भगवान बोल रहे कि ये जो सोल है ऐसा। तो आश्चर्यवत पश्यति, कोई ये सोल को अमेजिंग है करके देखता है, कोई देखता है कि यार ये सोल तो अमेजिंग है। एंड आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, and some people vadati means speaking, some people speak with amazement about this soul, and some other people आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, शृण means to hear। तो कुछ लोग ये सोल के बारे में सुनकर अमेज होते हैं, वाओ क्या, कैसा है यार, नैनम चिंतते शस्त्राणि नैनम दहति पावक, and they nosmin yata, they hear all these things, they get amazed by hearing it about the nature of the soul, Krishna is saying। And some people shrutvapi, they listen, वेद न, वेद मतलब knowing है ना, knowledge, न
Veda means understanding, knowing or understanding. So some people yet they hear, but still they don't understand. So Krishna is speaking about everyone here. कुछ लोग हैं जो लोग सोल को देख रहे हैं और एस्टॉनिश हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लोग सोल के बारे में सुन रहे हैं और एस्टॉनिश हो रहे हैं, कुछ लोग ये सोल के बारे में बोल रहे हैं और एस्टॉनिश हो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सुन रहे हैं सोल के बारे में पर फिर भी वो लोग को समझ में नहीं आता और वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल. So Krishna indirectly is saying one more thing here, that this Bhagavad Gita is not meant for anyone, everyone. क्यों? क्योंकि आपको अगर देखो भगवत गीता अगर समझना है ना, तो सबसे पहला लेसन आपको समझना होगा ना. आप सबसे पहला लेसन समझे बिना आखिरी तक कैसे समझोगे? So Krishna, by declaring that the soul is different and the body, soul is permanent and the soul is eternal and the body is impermanent, non-permanent. Krishna establishes the fact that I am going to speak about soul only here. So if you are not understanding what the soul is only, or if you are not appreciating the fact about soul, because Krishna says that there can be people who are, Muda, especially in Kali Yuga, he knows that people have very different ideas. They'll accept all sort of foolish things except for the real philosophy, and they cannot understand. And this is a very high subject matter. We cannot expect everyone to understand and be interested. इसके वजह से आप देखते हो कि ये जितने भी टीवी सीरीज और ये सब है जो न्यूडिटी, सेक्स, ड्रग्स, जितने जितने गलत काम है ना, सब चीज़ों के बारे में दिखाता है और एंटरटेन करता है ना लोगों को वो चीज़ देखने के लिए एंटरटेनमेंट है. बट द रियल थिंग, द रियल प्रॉब्लम, द रियल एंटरटेनमेंट इज हियर, बट नोबडी वांट्स इट, द एटर्नल एंजॉयमेंट, है ना, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर एनीवन, एनीवन एंड एवरीवन. दैट इज व्हाट it is said here. Not everyone is going to understand about this soul, right? Now Krishna gives a concluding verse here, क्योंकि यहाँ पर अभी 30th वर्स आ रहा है. 2.11 से लेके 30 तक एक्चुअली कृष्णा वाज स्पीकिंग अबाउट द इटर्नल नेचर ऑफ द सोल ओनली, है ना. तो कृष्णा सेज हियर, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. सो ही सेज दैट देहि नित्यम, देहि करके मैंने बोला था ना, देहि मतलब कौन होता है? आत्मा. आत्मा को देहि बोलते हैं, जो देह के अंदर बैठा है. देहि नित्यम, he is eternal. Avadhyoyam, and he cannot be killed. Vadhya matlab killing, and avadhyoyam matlab he cannot be killed or destroyed. Dehe sarvasya bharata, and he is within the body of everyone. Tatsmat sarvani bhutani, and in every living entity he is there. Therefore, natvam shochitum arhasi. So for any living entity which is being born or which is dying, you are not supposed to, or you do not deserve to lament. O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. This was the concluding verse, right? इसके बाद में कृष्णा is going to speak about sakama karma from verse 31 to 37. But we will stop here for now. कल का जो सेशन रहेगा वो एक्चुअली और थोड़ा क्या बोलते हैं, और थोड़ा डिटेल, मतलब थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं. बट स्टिल मैं यहाँ पर ऐसे ही खत्म करना नहीं चाहूँगा. थोड़ा सा मैं और एलाबरेट करना चाहूँगा ये चीज़ के ऊपर कि so far Krishna speaks about the permanent nature of the soul and the impermanent nature of this body. Which is more important? Certainly the permanent is more important. That which is eternal is more important because it is forever. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख पे इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, पीपल आर रनिंग बिहाइंड टेम्पररी थिंग्स. इवन इन रिलेशनशिप्स भी थी पहले. पहले सब तो ये क्राइटेरिया होता था लोगों का, एमंग यंगस्टर्स आई एम सेइंग, पहले तो ये क्राइटेरिया होता था, तो तू मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगा ना, तू मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी ना, दिस इज फॉर एवर ना, विल गेट मैरिड ना, ऐसा. अभी क्राइटेरिया ही उल्टा हो गया. अभी क्राइटेरिया ही ऐसे हो गए, देख भाई नो कमिटमेंट था, ये सब करेंगे अपन बट देर इज नो कमिटमेंट. कमिटमेंट नहीं है. Why? Because people have so degraded that they are finding enjoyment in temporary things. That is not very intelligent, right? Even this body is temporary. आप सोचो, Krishna is speaking that it is not very intelligent to lament about this temporary body. हम लोग टेम्पररी बॉडी के अंदर रह के और टेम्पररी चीजों में घुस रहे एंड डिस्ट्रैक्टिंग आवर सेल्स. इट इज वेरी डेंजरस एक्चुअली.
So Krishna first made a distinction between temporary and permanent, and he established that permanent is more important. That is the idea. We should understand, we should feed our soul, and that is spirituality. When you feed your spirit, that is spirituality. Just for the sake of body, whatever you do, that is not spirituality. That is, taking care of your health. Taking care of the spirit is actually spirituality. And how will you nourish the spirit? That is the question, है ना? हम लोग कैसे नरिश करेंगे ये बॉडी के अंदर रह के? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एंड द सोल आर डिफरेंट. We are soul having this bodily experience. We should not consider this body to be whole and soul. ये बॉडी ही सब कुछ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको. हमको ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली तो मैं आत्मा हूँ, मैं ये बॉडीली एक्सपीरियंस में हूँ. तब जाकर आप वो फॉल्स ईगो से ऊपर उठ पाओगे. तब जाके ये सारा चीज पॉसिबल होगा कि आप टॉलरेट करोगे प्रोवोकिंग सिचुएशंस को. आप भगवान का नाम ले पाओगे, अच्छे से भक्ति कर पाओगे और वापस जा पाओगे इधर से. Because an eternal life is waiting for us. Krishna is waiting for us. Krishna will say in the Bhagavad Gita only, Yad gatva na nivartante tad dhamam paramam mama. One who comes to my dhama, my abode, he never returns back. It is eternal. Krishna says he is Sachidananda. We are Sachidananda Vigraha. Like we are part and parcel of him. So we are supposed to enjoy with him. We are not supposed to enjoy with this dead matter. एक खिलौने के साथ खेलने जैसा है. And how would you re-establish? It is through the chanting of the holy names that we can do it. That is the most simplest method that we can have in the Kali Yuga, and the most powerful and the best method ever to have. You know, in this matter, actually, Prahlad Maharaj speaks a very beautiful verse. It shows the 9 limbs of bhakti actually. श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. He says that the process, what is the process through which you can have self-realization? Shravanam, hearing. Kirtanam, speaking. Vishnu, about whom? Vishnu or Krishna. Smaranam, thinking about him. Pada Sevanam, to become a servant of his hand, do Pada Sevan, to serve his lotus feet. Archanam, to do puja, Archana. Vandanam means to pay obeisances and to offer prayers. Dasyam, to become his servant. Sakyam, to become his friend. And Atma Nivedanam, to give oneself to him. This is the process. So it is not necessary that in the initial stages हम लोग सब कुछ कर पाए. We are not very advanced. But at least what we can do is Shravanam. है ना? Shravanam and Kirtanam we can do. श्रवणम आप कैसे कर सकते हो? एक तो अभी जो डिस्कोर्स अपना चालू है इसके अंदर आप लोग श्रवणम ही कर रहे हो. सिमिलरली आप अलग अलग जगहों से श्रवणम कर सकते हो. फ्रॉम अथॉरिटी, फ्रॉम प्रॉपर सोर्स, नॉट दैट किसी से भी आप सुन रहे हो. क्योंकि पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज थ्रू देयर मेंटल स्पेकुलेशन दे मेक and they impose it on you. That is not a very clever idea. We should approach Krishna from the scriptures. Krishna only says, Evam parampara praptam. Should approach him from the Apaurushaya Shabda Shastra, the lineage. So, Shravanam and Kirtanam we can do. We can sing nice bhajans and nice songs for Krishna. We can chant the holy names. Chanting the holy names is actually both Shravanam and Kirtanam at the same time. कैसे? You chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, and at the same time you are listening. It is very easy. Your mind gets engaged. हाँ, it runs away. We have to bring it back. जैसे योगा में बोलते हैं ना निधिध्यास, you have to bring it back. जैसे जैसे वो भागता है, you have to bring it back. And one day you will attain samadhi. It is nice. Samadhi doesn't really mean death. It means that you will attain that, spiritual consciousness. You will awaken that. So this chanting of the holy names is very important. क्यों? क्योंकि बाकी बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है एक्चुअली. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना ब्रेथ पे मन लगा और ये सारा चीज. बट द थिंग इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन.
But when it comes to chanting the holy names, you are associating directly with the supreme personality of Godhead Krishna at once. बिकॉज कलिकाल में नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता, और ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं कि कृष्णा करके मैंने बोला एंड कृष्णा इज हियर, इज वेरी काइंड. सो कृष्णा's नेम एंड यू कैन ट्राई इट. यू चांट वन राउंड, एक राउंड आप चांट करो एवरी डे एटलीस्ट. वो एक राउंड भी जब आप चांट करोगे ना, उसके बाद में वो भी एकदम श्रद्धा के साथ, you have to be in a very prayerful mood and chant the holy name, saying that, oh my dear Radharani and Krishna, please engage me in your devotional service. And you see the difference. एक माला करने के बाद वो दिन आप डिफरेंस महसूस कर पाओगे कि वो यस दिस इज सो ब्लिसफुल, इसमें कितना आनंद है करके. द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी ब्लिसफुल and at the same time you can realize the same. And also we need purity to approach spirituality. तो इसके लिए है 4 regulative principles: no meat eating, no gambling, no illicit sex, and no एक सेकंड, no meat eating, no gambling, no illicit sex. There was one more. कभी कभार बोलते बोलते एकदम बेसिक चीज से मैं भूल जाता. No intoxication, right? Sorry. No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. This was the order. मैं actually थोड़ा confused हो गया. तो yes, no meat eating. Why no meat eating? Because करुणा खत्म होता है, जैसा मैंने बोला. धर्म जो होता है ना, धर्म जो रहता है वो हमेशा 4 पिलर्स पे खड़े रहता है. सबसे पहला पिलर होता है करुणा और दया. सो मर्सी जो रहता है ना, मर्सी एलिमेंट वो खत्म हो जाता है. तो जीवों के प्रति जब तक आप में दया नहीं है ना, तब तक आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कर सकते. क्योंकि इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग व्हाट हैपेंस इज दैट as a spirit soul you are part and parcel of Krishna, and every other spirit soul is part and parcel of Krishna. You must see Krishna in everyone else. Oh yes, in this person also, in the heart Krishna is sitting. This person is also very dear to Krishna. वो करुणा कब आएगा? जब आप दूसरों को मारकर खाओगे अपने रुचि के लिए? नहीं. सो करुणा का नष्ट हो जाता है जब भी आप मीट ईटिंग करते हो. नो गैम्बलिंग. गैम्बलिंग के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होता है. यू चीट, है ना, यू बिकम क्रूकेड. नो इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन में आपका प्योरिटी, सॉरी प्योरिटी नहीं, आप एक्चुअली रियलिटी से दूर हो जाते हो, आप इल्यूजन हो जाते हो, डिल्यूजन में चले जाते हो. फोर्थ इज नो इलिसिट सेक्स. इलिसिट सेक्स मतलब सेक्स आउट ऑफ मैरिज एंड सेक्स आउटसाइड मैरिज, बिफोर मैरिज ऑल्सो. सेक्सुअल अफेयर्स जो रहता है उसको इलिसिट सेक्स बोलते हैं. इलिसिट सेक्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि इलिसिट सेक्स जो रहता है ना, इट एक्चुअली टेक्स अवे योर प्योरिटी. एंड फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यू नीड सम अमाउंट ऑफ प्योरिटी विद इन यू, otherwise you cannot grow spiritually. So 4 regulative principles and chanting of the holy names, if we start practicing, then धीरे 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 we will experience the bliss of Krishna. I'm not talking बहुत ज़्यादा इसीलिए क्योंकि as we move forward और भी बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर्स में जब भी हम लोग जाएंगे भक्ति के बारे में और ये सारी चीज़ें, तभी वी विल एनालाइज बाकी सारा मार्ग और भक्ति में क्या फ़र्क है एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारा चीज़ें. So I'll stop here, but yes, I sincerely want all of you to pray for me so that I can serve you all very nicely and right words come at the right time in glorification of the Lord. Because you see, Krishna is very merciful. You know, you all have joined. I am very grateful to you all because it is a Saturday morning and many people don't even get up. And even if they get up to attend a Bhagavad Gita class as the first thing that you do in a day, that too on a weekend. It is a holiday for many people. It is raining also, so it is very nice to sleep. है ना. तो तमोगुण में रहना बहुत convenient था, but still you all woke up and joined. I am very grateful to all of you, and that only shows that how serious you are when it comes to Shastras and Krishna with Bhagavad Gita. Please pray for me that I can also be sincere and I can sincerely serve you by discussing this Bhagavad Gita with you. Thank you so much. Hare Krishna. Please unmute yourself and feel free to ask questions. We have 10 minutes left.
And if there are no questions, you may also unmute and say that there are no questions, and you can move ahead with your day. हरे कृष्णा. सो तो नहीं गए लोग. हरे नहीं कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी. हाँ, बोलो बोलो. हरे जाग रहे। Yes, yes. There is no question. Thank you for appreciation and thank you for the beautiful session. Thank you. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Okay. If there is no question, then we can end here. Right? नो प्रभु जी, एक मिनट. हाँ, हाँ हाँ हाँ. पूछो ना. वो हो गया ना. एक मिनट, एक मिनट. हाँ हाँ. Sure. प्रभु जी, आपने जैसे बोला ना कि हम कोई कर्मा करते हैं या फिर जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमें प्रकृति रिएक्ट करती है, ठीक है. Right. Right. हाँ, तो फिर जैसे कि मैं कोई कर्मा भी करूँ तो वो प्रकृति के हिसाब से डिसाइड होता है या फिर हु विल डिसाइड इसको, ये बॉडी या फिर जो भी है इसके हिसाब से इसको पनिशमेंट जो भी है वॉट एवर, अच्छा. वो कैसे. हाँ हाँ. वो कैसे डिसाइड होता है पूछ रहा. हाँ. देखो कैसा रहता है ना कि एवरी जीवा, एवरी स्पिरिट सोल हैज अ फ्री विल. फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इफ यू हैव आवाज यू कैन म्यूट. थोड़ा साउंड आ रहा है इसलिए. तो हाँ, सब जो जीव रहते हैं ना, वो जीवों के अंदर फ्री विल होता है कि क्या करने का है करके. तो फ्री विल के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना है करके. तो हम लोग जब भी एन्जॉयमेंट और वो सारे चीज़ में जैसे हम लोग घुस जाते हैं और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसको हम लोग एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू लॉर्ड इट ओवर. वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेंसेस. द सेंस ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेंसेस और हम लोग उसको एंजॉय करने का कोशिश करते हैं. और ये एंजॉय करने के कोशिश में हम लोग कुछ कर्म करते हैं, है ना. वो एंजॉय करने का कोशिश ही एक कर्म, और उसके बदले हम लोग को एक रिजल्ट मिलता है. राइट. अभी वो कैसा होता है, पहला चीज इट इज अरेंजमेंट थ्रू माया देवी ओनली. ये जो कर्म होता है, ये कर्म जो रहता है, दिस इज एन अरेंजमेंट. दिस इज लाइक अ कोडिंग यू कैन से. फ्रॉम थोड़ा आईटी पर्सपेक्टिव से ऐसा बात करो तो जैसे हम लोग कोड करके रखते हैं ना, कि कोडिंग करके रखते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो ये चीज़ें होगी वैसा. तो सिमिलरली कुछ कोड्स है ऐसा कि अच्छा ओके, कोई इसको मारेगा तो इसके दंड में ये मारा जाएगा. या फिर हर एक चीज़ का एक रिएक्शन होता है. जैसे न्यूटन बोलता है ना थर्ड लॉ में, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. द सेम वे कर्मा ऑल्सो वर्क्स. कर्मा इज एक्चुअली अ फुल पैक सिस्टम जिसके साथ में ये बंद करके रख दिया जाता है हम लोग को. तो ये कर्म के जो फल रहते हैं ये एक्चुअली नेचर आपको ग्रांट करता रहता है. एंड परमात्मा सिटिंग विद इन एक्चुअली सैंक्शंस कि हाँ ओके, अप्रूव्ड ये चीज़. तो कर्म जो रहता है, कर्म आपका इंटेंशंस और ये सारा जो चीज़ रहता है, ये एक कॉम्बिनेशन रहता है एक्चुअली. ये सारा चीज़ों का एक मिक्सचर होता है. आप जो करोगे उसका फल आपको मिलता जाएगा. एंड दिस इज हाउ द सिस्टम इज एम्बेडेड. ऐसा. डज दैट क्लियर योर डाउट माता जी? यस शुड प्रभु आई जी, यस. इलेबरेट? शुड आई इलेबरेट? आपको और कुछ जानना है क्या हाँ, थोड़ा स्पेसिफिकली? थोड़ा जानना है एक्चुअली. थोड़ा सा डाउट है अभी भी कि मतलब. हाँ. क्या क्या एग्जैक्टली क्या डाउट है आपको कि कर्म का फल देता कौन है करके? हाँ, कर्म का फल देखा है, फिर बॉडी डिसाइड कर रही है तो परमात्मा बड़ी शंका कर रहा है कि इसको ये मिल रही है, प्रकृति क्या कर रही है उसमें. अच्छा, नहीं देखो, प्रकृति एक्चुअली क्या हो रहा है कि प्रकृति इज एन एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा. राइट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस प्रकृति, दिस द एंटायर वर्ल्ड इज मेड इन सच अ वे कि एक्शंस का रिएक्शंस होते रहे. पहला चीज. बट एट द सेम टाइम कृष्णा इज वेरी काइंड दैट ही हैज टेकन द फॉर्म ऑफ परमात्मा एंड ही इज सिटिंग विद इन द हार्ट ऑफ ऑल द जीवास.
So what happens is that whatever you do, वो चीज का आपको रिटर्न में आपको रिवॉर्ड, रिस्क और रिवॉर्ड आपको मिलता रहता है. लेकिन क्या होता है, along with it, the परमात्मा who is sitting within the heart, वो ऐसे ही रिएक्शन ऑटोमेटिकली नहीं होता है, साथ साथ में परमात्मा सैंक्शन भी करते हैं. So sometimes what happens is that कि आप अभी, for example, this is the case with devotees. When you become a devotee, Krishna is sitting within the heart, and that devotee, the Krishna personally takes care, and he sometimes postpones the karmic reactions, or he reduces the reaction. क्योंकि कृष्णा promises in the भगवद गीता कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कि you, what do you say, कि abandon all varieties of religion and surrender unto me, I will take care of you and I will take away all your sinful reactions. So Krishna promises that. So Krishna has the capability, क्योंकि Krishna is beyond nature, he is transcendental, and this nature also is a servant of Krishna. सो दैट इज द आइडिया. तो ये जो कार्मिक चीजें होता है ना, ये इस तरीके से सेट है कि एक्शन का रिएक्शन होता रहेगा, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय परमात्मा हु इज सिटिंग विद इन द हार्ट. तो ये both the things are there. So without approval of Krishna, nothing is happening. At the same time, the karma, the results of karma is given to us in such a way that what we have desired, what we have acted for, that is what we get in return. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब जेल में नहीं है, बराबर. क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे सिटीजन हैं. एट द सेम टाइम इफ अ सिटीजन इज वेरी बैड, ही इज पुट इनटू जेल. सो दैट जेल इज लाइक माया देवी. इसीलिए हम लोग दुर्गा देवी बोलते हैं. दुर्गा मीन्स शी इज लाइक अ फोर्ट्रेस. दुर्ग, तो गमन करने नहीं देती है बाहर. दिस इज लाइक अ जेल इन विच वी आर. सो इट इज फॉर द सिटीजन्स हु तो जेल के अंदर ऐसे लोग जाते हैं ना जो लोग बुरे चीजें करते हैं, तो वो बुरा चीज का फल भोगने के लिए वो लोग जेल के अंदर जाते हैं, बराबर. तो जेल वाले लोग. बट एट द सेम टाइम इफ द गवर्नमेंट इज सेइंग, or the judicial authority is saying that no, release this person, so that person will be released also. So the same thing is that. So Krishna is that person who is of full authority, who can say to release this person, और ये सिंपल रिएक्शन मत दो, वो करने का हक वो भगवान के पास है. एट द सेम टाइम भगवान ओनली अप्रूव्स कि अच्छा इसने ये कर्म किया, ये फल इसको मिलने वाला है, ठीक है मिलने दो. अब इसके अंदर बहुत सारा अरेंजमेंट्स करता है नेचर. जैसे कि जब भी बर्थ होता है एक पर्सन का, तो पहले के जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो हिसाब से वो लोग का प्लानिटरी सिस्टम और कॉन्स्टेलेशंस के टाइम पे वो बर्थ लेता है. इसके वजह से एस्ट्रोलॉजी काम करता है. अब देख रहे हो, हर एक माइन्यूट चीज है ना, भगवान ने उस तरीके से बना के रखा है कि कर्म का फल मिलता जाए नेचर से. एंड एट द सेम टाइम कृष्णा इज सिटिंग विद इन एंड अप्रूविंग एज परमात्मा. दिस इज द आइडिया. बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग. Does that Yes, clear? Prabhuji, clear. Okay. Any other doubt? Hare Krishna. No, Prabhuji. Thank you. Okay. Hare Krishna all. Hare Krishna. So we may end the session here. Thank you so much for joining. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.